ડિસ્કશન આની પહેલાં પણ આપણે ચેનલ પર કરી છે, પરંતુ હા ફાઇનલી હવે આ જે આઈપીઓ તે ખુલી ચૂક્યો છે. ઓવરઓલ એમ કહી શકાય કે ફૂડ ડિલિવરી અને ક્વિક કોમર્સનો દિગ્ગજ આઈપીઓ સ્વિગીની અત્યારે ઓપનિંગ આજે થઈ ગઈ છે. ઓવરઓલ કંપનીનો જે આઈપીઓ છે ક્યારે બંધ થશે તેના પર નજર કરીએ તો 8 નવેમ્બરે જે છે તે કંપનીનો આઈપીઓ આપણને બંધ થતો જોવા મળશે. ત્યાં જ પ્રાઇસ બેન્ડ પર નજર કરીએ તો 371થી 390 રૂપિયા પ્રતિ શેરની વચ્ચે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. અને આ આઈપીઓ દ્વારા કંપની લગભગ 11,327 કરોડ રૂપિયા તેઓ એકત્ર કરશે. હવે ખાસ ત્યાં નજર રાખવાની રહેશે કે એના ફ્રેશ ઇસ્યુ કેટલા છે. ઓવરઓલ તો ફ્રેશ ઇસ્યુની અગર વાત કરીએ તો 4,499 કરોડ આપણને ફ્રેશ ઇસ્યુ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યાં જ ઓએફએસ દ્વારા લગભગ આપણને 6,825 કરોડ રૂપિયા આપણને અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. લોટ સાઇઝની વાત કરીએ તો 38 તેની લોટ સાઇઝ આપણને જોવા મળી રહી છે. હવે સૌથી અગત્યની વાત છે કે તેમાં એન્કર રોકાણકારો કેટલા છે, વિદેશી એન્કર રોકાણકાર અને સ્વદેશી કેટલા છે અને કેટલું રોકાણ થયું છે. તો ઓવરઓલ એન્કર રોકાણકારોએ લગભગ 5,085 કરોડ રૂપિયા અહીંયા તેમને એકત્ર અહીંયા કર્યા છે. અને ખાસ કરીને ફિડેલિટ, નોમુરા, બ્લેક રોક જેવા ઘણા જ મોટા વિદેશી રોકાણકારોએ લગભગ 75થી વધુ રોકાણકારોએ અહીંયા રોકાણ કર્યું છે. અને ઓવરઓલ અગર હું વિદેશી રોકાણકારની અગર વાત કરું છું તો એસબીઆઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, આઈસીઆઈસી પ્રો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, મીરા મ્યુચ્યુઅલ ફંડે પણ અહીંયા રોકાણ કર્યું છે. પરંતુ ખાસ નજર એ રાખવાની રહેશે કે માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન કેટલું છે. ખાસ કરીને સ્વિગી વર્સેસ અગર ઝોમેટોની હું વાત કરું છું તો સ્વિગીની વાત કરીએ છીએ તો 87,300 કરોડનું આપણને પોસ્ટ ઇશ્યુ બાદનું આપણને માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન જોવા મળે છે. ઝોમેટોનું 2.22 લાખ કરોડનું આપણને કેપિટલાઇઝેશન જોવા મળી રહ્યું છે. પરંતુ જે આપણે સ્વિગીની જ વાત કરી છે તો તેના ડિફરન્ટ સેગમેન્ટ્સનું એનું ગ્રોસ ઓર્ડર્સ વેલ્યુ કેટલી છે તેના પર નજર કરીએ તો B2C બિઝનેસની અગર હું વાત કરું છું તો FY22માં જ્યાં 20,122 કરોડનું હતું તે આપણને ઘટતા આપણને Q1 FY25માં લગભગ માત્ર 10,189 કરોડનું આપણને ગ્રોસ ઓર્ડર વેલ્યુ આપણને B2C બિઝનેસમાં જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યાં જ બીજી તરફ અગર તેમના ફૂડ બિઝનેસની અગર આપણે વાત કરીએ છીએ તો ત્યાં પણ ઓવરઓલ આપણને આવા જ નંબર્સ આપણને જોવા મળી રહ્યા છે. FY22ની અગર વાત કરું છું તો 18,478 કરોડના આપણને ગ્રોસ ઓર્ડર્સ વેલ્યુ જોવા મળી રહ્યા છે. જે ઘટતા જ નંબર્સ આપણને જોવા મળી રહ્યા છે. Q1 FY25 પર નજર કરીએ તો માત્ર 6,808 કરોડ પર આપણને આ નંબર્સ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. તેમના બીજા સેગમેન્ટ એટલે ખાસ કરીને આપણે ફૂડનું કોન્ટ્રીબ્યુશન માર્જિન પર નજર કરીએ તો ત્યાં આપણને એક પોઝિટિવિટી જોવા મળી છે. FY22માં જ્યાં 1.6% માર્જિન્સ હતા જે 23માં 2.9 અને સતત આપણને એક ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. અને Q1 FY25માં આપણને 6.4%ના આપણને માર્જિન્સ જોવા મળ્યા છે. અને તેમનો સૌથી અગત્યનો બિઝનેસ એ જે છે ક્વિક કોમર્સ, તેના પણ ગ્રોસ ઓર્ડર્સ વેલ્યુ પર નજર કરીએ ત્યાં પણ આપણને નંબરમાં એક સારો એવું આપણને એક નંબર્સ જોવા મળે છે. FY22ના નંબર્સ પર નજર કરીએ તો 13,683 કરોડ પર આપણને જોવા મળ્યા છે, જેમાં સતત આપણને ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે. ખાસ કરીને FY24ના નંબર્સ પર નજર કરો તો 8,068 કરોડ પર નંબર્સ જોવા મળ્યા છે. પરંતુ Q1 FY25માં એ નંબર્સ આપણને એક સારા એવા ડિક્લાઇન તરફ જોવા મળ્યા છે. અને 2,724 કરોડ પર આપણને ઓર્ડર્સના નંબર જે છે આપણને વેલ્યુ નંબર્સ આપણને જોવા મળી રહ્યા છે. પરંતુ ત્યાં અગર તેના કોન્ટ્રીબ્યુશન માર્જિન પર નંબર્સ પર નજર કરીએ છીએ તો ખૂબ જ નેગેટિવ નંબર્સ હતા અને ત્યારબાદ એક સાફ આપણને એક ઉછાળો જોવા પણ મળ્યો છે. FY22માં 32.26%ના નેગેટિવ નંબર્સ હતા, જે સતત ત્યાં એક ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. અને Q1 FY25માં આ જે નંબર્સ જે છે તે આપણને -3.18% પર માર્જિન્સ આપણને આવતા જોવા મળ્યા છે. એટલે ઓવરઓલ એમ કહી શકાય કે માર્જિનના ફ્રન્ટ પર તો કંપનીનું આપણને એક સારું પરફોર્મન્સ જોવા મળી રહ્યું છે. પરંતુ ગ્રોસ ઓર્ડર્સ વેલ્યુના હિસાબે આપણને એક નેગેટિવ નંબર્સ અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. અને આ પૂરી ડિટેલ્સ છે અત્યારે આ સ્વિગીના આઈપીઓની. ઓકે, તો આ આઈપીઓની સમગ્ર વિગતો આપણને આવતી દેખાઈ રહી છે. આભાર તૃપ્તિ આપના સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. તો ખાસ કરીને આપણે જોયું છે સ્વિગીનો જે મેગા આઈપીઓ આજથી ખુલ્યો છે એની વિગતો આપણે જોઈ છે. અને 8 નવેમ્બરે આઈપીઓ જે છે તે આપણને બંધ થતો જોવા મળશે. આના ઉપર આપણે વધુ અપડેટ અને વિગતો લઈશું. પણ આગળ વધીએ અને જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે આઈપીઓની વાત કરી લઈએ તો મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે સ્વિગીના. ખાસ કરીને સ્વિगी लिमिटेडના CFO राहुल बोथरा अपनी साथ जोड़ाई गया है. राहुल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका. और सबसे पहले अगर रिस्पांस की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर के पास से कैसा रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है, और डोमेस्टिक फंड की बात करें तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कैसा दिखा सर? डेफिनेटली. सो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं नए साल की.
जैसे आपने बताया कि पिछले 4 से 6 हफ्तों में हमने कंपनी ने 125 मीटिंग्स की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ। इसमें काफी जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी की स्टोरी सुनते हैं और फिर एक वैल्यूएशन एक डिसीजन लेते हैं। तो इसमें हमने काफी उत्साह देखा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का भी। अगर आप देखोगे कि टॉप 19 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने हमें सपोर्ट किया है। कल हमारे एंकर बुक में जो 5,085 करोड़ का जो एंकर बुक था, उसमें 75 से ज्यादा निवेशकों ने अपना बिट्स दिया है और हमने अलॉटमेंट दिए हैं। काफी बड़े बड़े नाम भी है उसमें। डोमेस्टिक के आप देखो तो म्यूचुअल फंड्स है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, पेंशन फंड्स है। आप फॉरेन के भी नाम देखो तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स है। तो काफी अलग एक डाइवर्सिफाइड बुक हमें मिला है और हम काफी खुश है एंकर सपोर्ट से। जी राहुल सर, और सर आपसे ये भी थोड़ा समझना चाहेंगे खास करके कि जो स्विगी का फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स बिजनेस है, थोड़ी उसकी इनसाइड हम जानना चाहेंगे। क्या आपको कहाँ से यहाँ पर ग्रोथ आते हुए दिखेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि ये दोनों सेगमेंट ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी बहुत ही पोटेंशियल आपको टैप इन करना बाकी है। अच्छा, तो जो फूड डिलीवरी बिजनेस आप देखो कि जो भारत में अभी हम एक मैक्रो ट्रेंड देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। पूरे इंडिया में आप देखोगे तो 3 से 4 लाख रेस्टोरेंट्स ही है और 2.25 लाख हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो एक तो जो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स काफी बढ़ रहा है, कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा बाहर का खाना पसंद करना लगे हैं। जैसे हम एक ग्लोबल एक ट्रेंड देखते हैं कि घर पे कम खाना बनता है और बाहर से ज्यादा खाना लोग पसंद करते हैं। तो जो ग्रोथ हम देख रहे हैं इस इंडस्ट्री की, वो 18 से 22% तक का ग्रोथ एक एस्टिमेशन चल रहा है। जिससे हमें काफी एक फायदा मिलेगा हमारे फूड डिलीवरी बिजनेस को, क्योंकि एक स्केल के बाद ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है। जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि 2000 अभी जो हमारा पहले क्वार्टर में हमने पॉजिटिव एक एबिटा डिलीवर किया है 0.8% का। और जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी वो प्रॉफिटेबिलिटी भी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है वो एक नया कैटेगरी है इंडिया के लिए भी नहीं, बट पूरे विश्व के लिए आप देखेंगे तो भारत एक्चुअली सबसे अहेड है इन दिस जर्नी। जो 3 साल में क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री ने ग्रोथ दिखाई है। कस्टमर्स भी हमारे जो प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सामान चाहते हैं। लास्ट ईयर हमारे प्लेटफॉर्म पे 8 से 9,000 जो हमारे आइटम्स थे वो बढ़ के अभी 19,000 आइटम हो चुके हैं। इससे हमने हमने हमारे स्टोर की साइज भी बढ़ाई है। जो हमारे 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट के जो स्टोर होते थे वो आज की तारीख में हम 4,000 स्क्वायर फीट का स्टोर बना रहे हैं। साथ ही साथ हम एक बड़ा स्टोर का भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर कस्टमर्स को इससे ज्यादा भी अगर आइटम्स की जरूरत हो तो हम उसको कैसे 10 या 20 मिनट में मैक्सिमम उपलब्ध करा पाए। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम स्टोर्स खोले, ज्यादा से ज्यादा हम आइटम्स रखें, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा हम कम समय में कस्टमर्स को वो आइटम्स डिलीवर कर सके। ठीक है सर, और अगर इंस्टामार्ट की बात करें तो आपने पहले बताया था कि यहाँ पे जो है ग्रोथ की ज़्यादा संभावनाएं है, लेकिन ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे एप्लीकेशंस है उनके जो कंपटीशन उनको देख के अभी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे इंस्टामार्ट बिजनेस में आप कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं, और यहाँ पे मार्जिन पेन आउट को लेके कुछ आपने योजनाएं बनाई है? तो एक तो आप कंपटीशन की आपने बात की, लेकिन जो मार्केट का जो साइज है वो काफी बड़ा है। तो जैसे फूड डिलीवरी में आपने देखा कि एक मार्केट की जो साइज है वो लिमिटेड है, क्योंकि इंडिया में अभी भी रेस्टोरेंट्स बेस भी कम है और कस्टमर्स भी कम यूज करते हैं, लेकिन वो एक अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन आप क्विक कॉमर्स की तरफ देखेंगे तो जो ओवरऑल साइज ऑफ द बिजनेस है वो और मार्केट है वो काफी बड़ा है। तो इससे कंपटीशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और नया कंपटीशन भी आ सकता है। तो हमारा मानना है कि इसमें 2 से ज्यादा डेफिनेटली प्लेयर्स रहेंगे, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है। और आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात की, तो जैसे हमने फूड डिलीवरी में डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक स्केल के बाद आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ता रहता है और आप प्रॉफिटेबिलिटी दिखा पाते हो। हमारा आप क्विक कॉमर्स बिजनेस देखेंगे तो FY23 में हमारा -23% कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, जो घट के -6% हो गया हमारे FY24 में, और Q1 में ये -3% हो गया। तो जैसे जैसे हम स्केल कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे जो मोनेटाइजेशन लीवर्स है रेवेन्यू के, हमारा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म का बढ़ रहा है, हमारे खर्चे कम हो रहे हैं, और एक स्केल के बाद हम काफी इसको एक ट्रेजेक्टरी हम दिखा पा रहे हैं इन द क्विक कॉमर्स बिजनेस।
जी राहुल सर, सर आपसे एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे कि अभी हम देख रहे हैं कि हर एक प्लेटफॉर्म एक 10 मिनट वाली डिलीवरी के साथ एक प्लेटफॉर्म नए ला रहे हैं। आपने भी बोल्ट 10 मिनट करके एक जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया हुआ है। सर क्या किस तरीके से वहाँ से आपको एक ग्रोथ देखता हुआ आता हुआ दिखेगा और कैसे असर पड़ेगा आपके ओवरऑल बिजनेस पर, और ख़ास करके इसके यूनिट इकोनॉमिक्स हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको फ़ायदा होते हुए दिखेगा। तो जैसे क्विक कॉमर्स में कस्टमर्स ऑलरेडी 10 से 12 मिनट का एक उनको एक यूज केस ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। तो हमने सोचा कि जैसे हमारा एक डीएनए भी इनोवेशन का रहा है, हम हमेशा मार्केट में देखते हैं कि कैसे नई नई चीजें ला सके, कस्टमर्स को ज्यादा खुश कर पाएं और ज्यादा अच्छी तरीके से सर्विस दे पाएं। तो वैसे ही फूड डिलीवरी में हमने एक क्विक कॉमर्स का वर्जन लॉन्च किया है, 10 मिनट का फूड डिलीवरी, जिसको हमने बोल्ट नाम से अनाउंस किया है। तो इसमें हम हमारा जो बिजनेस मॉडल है कि हम अपने रेस्टोरेंट पार्टनर के साथ उन आइटम्स को लिस्ट करेंगे जो जल्दी बन पाए या ऑलरेडी रेडी हो रेस्टोरेंट्स के पास। तो इसमें भी आप देखेंगे कि एक रेस्टोरेंट्स में कुछ चीजें शायद 10 मिनट में लगता है बनने में, और कुछ चीजें तैयार रहती है या मिनिमम 1 या 2 मिनट में रेस्टोरेंट पार्टनर बना पाते हैं। तो वो चीजें हम कस्टमर्स को डिलीवर करेंगे विद इन 2 किलोमीटर्स, ताकि उनको फ्रेश खाना मिले, जल्दी मिले। आज के तारीख में आप देख रहे हो कि कस्टमर्स के पास समय नहीं होता है। तो 27 मिनट जो हमारा फूड डिलीवरी में जो एवरेज डिलीवरी टाइम होता है, तो वो भी शायद कस्टमर्स को ज्यादा लग रहा है। तो इसलिए अभी 10 मिनट का फूड डिलीवरी भी हमने लॉन्च कर दिया है। इसके यूनिट इकोनॉमिक्स अभी बहुत जल्दी है इसके बारे में बात करना, क्योंकि इसमें एक तो हमारा खर्चा कम होता है, क्योंकि जो लास्ट माइल है, जो रेडियस है डिलीवरी का, वो कम रखते हैं। और दूसरी चीज है कि इसमें जो आइटम्स अवेलेबल होंगे, तो वो हमें देखना है कि वो ज्यादा मार्जिन वाले आइटम्स होते हैं या कम मार्जिन वाले आइटम्स होते हैं। तो उसका अभी पूरा विश्लेषण करना मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं ऑलरेडी कि कस्टमर्स काफी इस चीज को पसंद कर रहे हैं और काफी डिमांड इसमें आ रही है। उसी के साथ राहुल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर लिस्टिंग सर।